Hello, Assalamu alaikum. What is Bitcoin? What is digital currency? How NFTs work? Can they really make someone successful and make huge fortunes? There are many platforms available. Which ones are the right ones? स्टूडेंट्स के लिए इसके क्या बेनिफिट हो सकता है? दुनिया इसके पीछे पागल हुई हुई है। हम पाकिस्तान में इसके लिए क्यों नहीं कर रहे? व्हाट आर द लिमिटेशंस दैट पाकिस्तान फेसेस? इन सारे सवालों के जवाब जो हैं वी विल ट्राई टू फाइंड आउट टुडे। वी हैव विद अस चौधरी अनवारुल हसन. He is a very good researcher, a powerful researcher. Loads of experience with him in the field of digital currency. He is also having a good background of academic institutions. So let's meet him and try to find out the answers of these questions ताकि उससे हम भी फ़ायदा उठा सकें, आप भी फ़ायदा उठा सकें और हम ये देख सकें कि हम पाकिस्तान को कैसे सर्व कर सकते हैं। एक नाम आप लोगों ने बहुत सुना हुआ है, वकार ज़क्का फ्रॉम कराची। वो पिछले कई अरसे से कई सालों से ये बात कहता आया है कि हमें इस करेंसी की तरफ बिटकॉइंस की तरफ मूव करना चाहिए। उसकी वीडियोस अवेलेबल है। तो वी आर नॉट शेयरिंग दैट वीडियोस हियर बट जस्ट फॉर द रेफरेंस कि मैंने एक शख्स को ही देखा ये करते हुए। लेट्स सी आज चौधरी अनवारुल हसन साहब हमें इसके बारे में क्या कहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी हैव चौधरी अनवारुल हसन विद अस। अस्सलाम वालेकुम चौधरी अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तो चौधरी अनवर साहब, हम शो को ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन मैं करा चुका हूँ, लेकिन आपकी अपनी ज़बानी ये हो जाए राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ तो ये बेहतरीन होता है। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। My name is Children Wallace 20. I'm employed at Air University, Islamabad. Prior to this, I have had teaching experience in Capital University of Science and Technology, Federal Urdu University of Art, Science and Technology, and Uswa Institute of Higher Education. In industrial perspective, I have been worked in different companies from 2015 to 2019. I have been worked in eVision Software Technologies, then I have been worked in Instabyte Technologies, and now I own my own company, Ogretech Private Limited. We are providing different kind of services like mobile application services, web application services, along with this data analysis, artificial intelligence services, and one of the important services that is relevant to the blockchain, which is virtualization. In other words, we are also creating a small metaverse for you or decorate the metaverse, your place in metaverse. Moreover, my interest began towards it when I have first attended the talk of Sir Ziad, the one who started the initiative of blockchain in Pakistan with the help of President of Pakistan, Dr. Arif Alvi. He introduces blockchain first time in the Pakistan. I attend his talk, then it's give me, then I gain the more inside knowledge from then. In 2020, around in 2020, first time in convention center. Then I started work on it, and I developed with the passage of time two different projects on it. One is blockchain-based e-voting system, and another one is blockchain-based version control system. A version control system is completely replica of GitHub. Both of these projects, along with my research papers, are available on my Google Scholar profile. सर उस पे बिल्कुल अंडरस्टूड योर पॉइंट एंड वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस दैट यू हैव, वेरी मोटिवेटेड पर्सन यू आर, और आपसे काफ़ी स्टूडेंट भी मोटिवेट हो रहे होंगे। बिटकॉइन पे हम तफसीली बात करेंगे। तो ये बताइए कि पहले आप जो है ये आप वेयर वॉज योर ब्रॉट अप, कहाँ से आपका ताल्लुक है और आप कैसे इस्लामाबाद कैसे पहुंच गए और एयर यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचे? तो बेसिकली जब मैंने बीएस स्टार्ट किया, बीएस मैंने किया था नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद से। तो फिर उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ज्वाइन की, वहां पे मैंने देखा कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए हमें क्या प्रॉब्लम, यूजली हम क्योंकि पहली जो कंपनी थी मेरी वो इंटरनेशनल लेवल कंपनी नहीं थी, तो वहां पे हमने देखा कि हम खुद ही रिक्वायरमेंट गेन कर रहे हैं, खुद ही डेवलपमेंट कर रहे हैं, कभी कॉस्टिंग की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कभी टाइम की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ डिलेज आ रहे हैं। इन चीजों को देखते हुए मैं अक्सर प्रोजेक्ट मैनेजर से डिस्कशन करता था कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकें। उन्होंने फिर डिस्कशन में बताया कि जो है एक रिसर्च की दुनिया है, जो कि इस पे काम कर रहे हैं लोग, तो फिर मैंने कहा वाई नॉट कि उधर भी जंप की जाए। तो वहां भी जंप करते हुए फिर मुझे पता चला कि एमएस करना चाहिए।
तो फिर 2015 2 साल के बाद मैंने एमएस स्टार्ट कर दिया कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। जब वहाँ मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ पे फिर मैंने इस पे काम किया सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन पे, और वहाँ पे प्रॉपरली काम करके डिफरेंट फ्रेमवर्क प्रोड्यूस किए कि किस तरह से हम टाइमली काम कर सकते हैं, बिल्कुल मेटा ह्यूरिस्टिक्स को यूज करते हैं कि जिस तरह से हमारे नेचर इंस्पायर्ड या मेटा ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम्स जो है वो जी। टाइम को कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल टाइम पे अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह से हम भी अपना जो टास्क है वो टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। इस चीज को देखते देखते फिर मैंने जो चीजें मतलब एक चीज से दूसरी चीज ड्रॉ होती है, आप डायरेक्शंस मिलती हैं। इसको देखते हुए देखा कि जिस तरह हम फिर सोशल मीडिया यूज करते हैं डे बाय डे, हमने एक अक्सर वर्ड सुना हुआ है, टाइम इज मनी। हम्म। बेसिकली टाइम इज मनी, डाटा इज मनी। रीजन क्या है, जब आप किसी सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आप वहां पे लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो आप अपना डाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो डाटा सेल होता है और वो डाटा बेसिकली जो है वो मनी है। तो फिर उस डाटा एनालिसिस पे काम करना शुरू कर दिया। जब डाटा एनालिसिस पे काम करना शुरू किया तो वहां मैंने देखा कि इस डाटा की सिक्योरिटी तो है ही नहीं, अगर किसी की कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है तो उसे कैसे मैनेज करेगा, कैसे स्टोर करेगा। तो उस चीज को देखते हुए फिर जो है थोड़ा बहुत ब्लॉकचेन की तरफ आना शुरू हो गया। ब्लॉकचेन जो है वो बेसिकली सिक्योरिटी का पर्पस है, वो आपके डाटा को सिर्फ और सिर्फ सिक्योर कर रहा है और डिसेंट्रलाइज कर रहा है। डिसेंट्रलाइज इस रिस्पेक्ट में, जब आपका डाटा मल्टीपल लोकेशंस पे होगा तो डेफिनेटली वो सिक्योर होगा। तो इस चीज ने जो है ब्लॉकचेन की तरफ मेरा इंटरेस्ट बिल्ड किया। तो इसमें मुझे ये बताएं कि ऑफ कोर्स रिसर्च में हम देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, की भी है रिसर्च। रिसर्च नॉर्मली अकेले नहीं होती, यू हैव गॉट टू हैव सम टीम मेंबर्स विद यू, अ फ्रेंड सर्कल, अ नेटवर्क विद यू। तो यू हैव ऑलरेडी डेवलप्ड दैट नेटवर्क। एग्जैक्टली इन स्टार्टिंग जो मेरे रिसर्च के मेंटोर्स हैं वो डॉक्टर नजीम जावेद, अगर आपने उनकी वो स्कॉलर प्रोफाइल भी देखी होगी तो अराउंड इस वक्त उनकी भी अराउंड 12,000 प्लस साइटेशन चल रही हैं। तो अच्छा। वहीं से मैंने उन्हीं के साथ काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि जब मैंने एमएस में था तो पहला सब्जेक्ट उन्होंने ही रिसर्च मेथोडोलॉजी का मैं पढ़ाना शुरू किया। तो अराउंड 10 या 11 बजे से पहले तो हम लाइब्रेरी से नहीं निकलते थे, लाइब्रेरी वाले हमें कहते थे चलो आप घर चले जाओ। तो उस तरह से वहां से रिसर्च उनके साथ स्टार्ट की, और वहां से फिर ये आइडियाज बिल्ड होना शुरू हुए और फिर चीजों को बेहतर से बेहतर करने की तरफ। और अब यह है कि एक हमारी रिसर्च टीम बिल्डन है जिसमें हम एनएफटीज पे काम कर रहे हैं, हम मेटावर्स पे काम कर रहे हैं। इवन कि आप उनमें से तकरीबन अराउंड 18 to 20% जो है वो मेरी कंपनी में हायर्ड है, जो कि प्रोजेक्ट वंडरफुल। बेसिस पे काम कर रहे हैं। दैट इज वंडरफुल, आपके पास अपनी एम्प्लॉयमेंट भी है। अच्छा, कमिंग कमिंग टूवर्ड्स द टॉपिक हमने जिस पे थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। अब मैंने एक नाम बहुत सुना हुआ है, आपने भी सुना होगा, वकार जका का। कराची से इनका ताल्लुक है, तो हम ऑलरेडी उन पर डिस्कशन नहीं करने वाले, ना हम उनकी वीडियोस शेयर करने वाले हैं। लेकिन वकार हम्म। जका की जो मैंने वीडियोस देखी हैं, ही हैज बीन ऑलवेज अ प्रीचर कि अगर हम डिजिटल करेंसी की तरफ, बिटकॉइंस की तरफ आ जाएं, तो इवन वो पाकिस्तान के कर्जे भी पूरे के पूरे उतार सकती है। इज इट ट्रू कि हम पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स है, इस करेंसी, डिजिटल करेंसी या इथेरियम या इस साइट को यूज करते हुए, हम उस साइट से थोड़ी रिलैक्सेशन ले सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेके पहले चलते हैं। आप देखें, जब ये बाइनेंस है हमारे पास, जो डिफरेंट एक्सचेंज है, बाइनेंस होगी, ओकेएक्स होगी, मल्टीपल एक्सचेंज। अब हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली ये लीगल नहीं है। अगर आप देखें, यही काम तुर्की में हो रहा था, तुर्की ने सिर्फ बाइनेंस से $7 मिलियन दिए थे जस्ट कि वो ऑपरेट हो जाए तुर्की में। और अगर इसी तरह से हमारी कंट्री जो है वो तो उससे ज्यादा पॉपुलर है, और वो सेकंड या थर्ड नंबर पे आ रही थी उस टाइम क्रिप्टो करेंसी को यूज करने में, तो हम तो उनसे $20 मिलियन से भी ज्यादा ले सकते थे। ये जस्ट एक एक्सचेंज की बात है। इसी तरह ओकेएक्स है, एफटीएक्स है, मल्टीपल एक्सचेंज है। $1 बिलियन तो सिर्फ हम उनसे एज अ फी ले सकते हैं, मंथली या ईयरली। ये एक मैकेनिज्म है। सेकंड, जैसे फिर अभी आपने वकार जका की बात की, वकार जका जो है वो 110 कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं, और उनकी कंपनी की जो मेन है वो दुबई में ऑपरेट हो रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में ये लीगल नहीं है। बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली थी केपीके में माइनिंग की, और केपीके में माइनिंग इस वजह से सूटेबल थी क्योंकि माइनिंग जब हम करते हैं तो आपका सिस्टम हीट अप हो जाता है, सिस्टम को प्रोसेस को कूलिंग एनवायरमेंट है। तो जो आपका पीटीआई का काफी एरिया, जो नॉर्थन एरियाज हैं, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कूल है, तो वहां पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन जो है वो लेस होती है। और इसे इतना रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं कि विद इन 1 or 2 years, जो हमारे मुल्क पे कितना करता है, अराउंड $224 बिलियन। जी। तो ये आराम से जो है वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू इन 1 or 2 years में रिमूव किया जा सकता है। तो लिमिटेशंस हैं क्या? आपकी क्या रिसर्च है, क्या कहती है पाकिस्तान में
चैलेंजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ फोकस क्यों नहीं कर रही है? पाकिस्तान में बेसिकली अगर आप देखें तो इवन पेपाल तक अभी तक नहीं इंट्रोड्यूस हो सका। और यही चीजें हैं कि हाँ, एक फियर है कि अगर लोग इस तरफ चले जाएंगे तो क्या होगा। इवन के जो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर थे क्रिस्टन लिगार्ड, उन्होंने भी ये कहा था कि चीजें जो है वो डिसेंट्रलाइज हो रही हैं, तो चीजों का जी कंट्रोल खत्म हो रहा है। जी। यही प्रॉब्लम पाकिस्तान में स्टेट ऑफ जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है उसकी तरफ से आ रही है कि अगर चीजें सारी डिसेंट्रलाइज हो जाएंगी तो उनका कंट्रोल, उनका एक्सेस खत्म हो जाएगा। सेकेंडली जो इसे कहते हैं ना, ये ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। आपके पास क्रिप्टो करेंसी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेके आ रही है। आपकी जो ब्लॉकचेन है ये ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेके आ रही है। इवन की जो ब्लैक मनी को व्हाइट करने के बाकी प्रोसीजर्स हैं, ये उन सबको रिड्यूस कर देगा। हमारे पास कुछ बस ये है कि कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस को अप्लाई करके, हम अगर इसको अप्लाई करते हैं पाकिस्तान में तो डेफिनेटली ये ले आएंगे। बेहतरीन। पर हमारे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस देखे जाते हैं। जो मेजर चैलेंज है वो इलेक्ट्रिसिटी का, अगर उसे कंसीडर किया जाए, पर हम्म। उसको हम किसी हद तक कवर कर सकते हैं नॉर्दर्न एरियाज को जो है फोकस करके। सेकंड जो चीज है वो ये है कि हमारे पास कोई ऐसा लीडरशिप या पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है कि जो उसको आगे प्रमोट कर सके। ये तो आपने मेजर डायलेमा की तरफ पॉइंट आउट कर दिया है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मेजर प्रॉब्लम चल रहा है वो लीडरशिप का चल रहा है। ऑल्दो हर पार्टी का अपना पर्सपेक्टिव है और वो इस तरफ जा रहा है। तो ये आजकल ये वाई डॉलर हैज जंप टू 300 और ट्रिपल सेंचुरी हो गई है, पेट्रोल हाइक्स हो रही हैं। तो एज एन इकोनॉमिस्ट इस पे आपकी कोई रिसर्च है कि इसके पीछे क्या मैकेनिज्म चल रहा है? इसको अगर हम डॉलर की बात करें ना तो आप देखेंगे कि ये, मैं वैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं कह रहा, एक जनरल कह रहा हूँ। आप जब भी देखेंगे पीएमएलएन की गवर्नमेंट होगी तो डॉलर की प्राइस और पेट्रोल की प्राइस सेम होगी। इवन आप 2013 में चले जाएं, उससे प्रीवियस चले जाएं, जब भी पीएमएलएन की गवर्नमेंट होगी तो डॉलर को पेट्रोल के साथ स्टेबल रखते हैं। तो अभी भी अगर आप देखें डॉलर की प्राइस 307 होगी तो पेट्रोल की प्राइस 305 होगी। तो ये उस लिहाज से कंट्री को स्टेबल रख के लेके चल रहे होते हैं। ठीक। अच्छा, आते हैं वापस अपने इस मेन टॉपिक की तरफ। ये बताएं इजी वर्ड्स में, ये बिटकॉइन डिजिटल करेंसीज ये हैं क्या चीज? ठीक है, बेसिकली ना हम बड़ी सिंपल सी बात पे आ जाते हैं। अगर हम अपना एक नॉर्मल जो हमारे पास पेपर करेंसी है उस पे देखें, उस पे एक स्टेटमेंट लिखी होती है उर्दू में कि हामिल हाजा को मुतालबे पर हाँ अदा किया बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। बेसिकली क्या अदा, वो ये गोल्ड जो बैक एंड पे गोल्ड जिसकी बेस पे ये करेंसी जो पब्लिश हुई है, वो जब भी हम जाएं तो वो हमें देने के पाबंद है। तो इसी तरह से बिटकॉइन क्या है, एक डिजिटल करेंसी है जो बैक एंड पे डॉलर को रिजर्व रख के बनाई गई है कि इतने डॉलर रिजर्व हैं, उसकी बेस पे ये डिजिटल एसेट्स को यूज किया जा सके। वो डिजिटल कॉइन है जो कि काम करता है कि ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम जो आती थी डबल स्पेंडिंग की, ये इशू आ जाता था कि डिजिटल है, यहाँ भी कॉपी कर ली, जैसे स्टूडेंट ने असाइनमेंट इधर कॉपी कर ली, उधर भी उधर भी। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए इसे ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट किया गया। अदरवाइज जैसे हम कहते, इससे पहले आई थी डिजी कैश 1985 में, वो नहीं चल सकी थी। मेजर रीजन ही क्या था कि वो डबल स्पेंडिंग हो सकती थी, सेंट्रलाइज ही बैंक्स का कंट्रोल था। पर जब ब्लॉकचेन जो है बिटकॉइन स्पेशली, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन की, 2008 में इंट्रोड्यूस हुई। तो बेसिक इसका मैकेनिज्म ये था डिसेंट्रलाइजेशन, कि हर नोड, जितनी भी नोड्स हैं, हर किसी के पास इक्वल रिकॉर्ड होगा। तो कभी भी ये डबल स्पेंड नहीं हो पाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ, और इवन के और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। कभी गेमिंग जोन में हम जाते हैं, कि गेमिंग जोन में कभी जाके हम कुछ पेमेंट दे के कुछ कॉइन्स लेते थे गेम्स को जी खेलने जी के लिए। जी। तो ये वही है, इसी तरह से क्वाइंस हैं कि अब दो नाम होते हैं, अक्सर आपने सुना होगा क्वाइंस एंड टोकन्स। क्वाइन वो है कि प्रॉपर करेंसी, जैसे बिटकॉइन है ये एक प्रॉपर करेंसी है। अगर इसी के प्लेटफॉर्म को यूज करके कोई और अब बनाएगा तो वो टोकन्स हो जाएंगे। मतलब अब इस बिटकॉइन के इतने टोकन्स हैं, अगर ये इथीरियम है, इथीरियम पे कोई न्यू करेंसी बनेगी तो हम उसको टोकन का नाम देते हैं कि उसके बैक एंड पे इथीरियम पड़ा हुआ है। तो ये वो डिजिटल एसेट्स हैं जिनको यूज करके आप कोई भी काम कर सकते हैं। बेसिकली ये इतना सिक्योर है। अगर हम इसकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, करेंसी तो हम भी अभी क्या करें, ERC20 का कोड है, अवेलेबल है, 10 मिनट में उठा के हम करेंसी बना देंगे। करेंसी के बैक एंड पे एसेट्स क्या हैं, वो एसेट्स असल इंपॉर्टेंट चीज है जो उसको रेगुलराइज करेगा कि वाकई ये मार्केट में जाए या ना जाए। और उसकी सिक्योरिटी को ब्लॉकचेन SHA-2 जो हमारे पास सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम है,
उसके थ्रू इनहांस करता है। सेकंड जो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है वो नाउंस है। हैशिंग तो अप्लाई कर दी, अब इरिवर्सिबल हैशिंग है, पर उसमें एक नाउंस फिगर होता है, नंबर एट ओनली वंस। वो ये काम करता है कि अगर हम एक हैश जनरेट कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ अगर हम हैश जनरेट करते हैं उसके स्टार्ट में 6 zeros लगा दो। अब 6 जीरो कैसे आएंगे? अगर एक वर्ड है एप्पल, एप्पल में मैं ऐसा कौन सा वर्ड दूसरा ऐड करूं कि उसका जब मैं हैश जनरेट करूं तो उसके स्टार्ट में 6 जीरो आ जाए। तो वो एक्चुअली वो नाउंस वो नंबर है जिससे मैं ऐड कर दूं तो एक ऐसा हैश जनरेट हो कि जो कभी भी पता ना चल सके कि क्या हैश है। ये इस चीज को सिक्योर कर रहा है आपकी डिजिटल करेंसी को। इसकी वजह से इससे पहले तक अभी तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुई थी और ये आते ही सक्सेसफुल हो गई है। एंड इट हैज टेकन द वर्ल्ड बाय अ स्टॉर्म। अभी बहुत ज्यादा जो है वो दुनिया इस तरफ मूव कर चुकी है, बिलियन ट्रिलियन डॉलर हम्म, इंडस्ट्री बन चुकी है। मेरी खुद मुलाकात हुई हम्म, एक कंपनी से जो बाहर से आई हुई थी, डेनमार्क से आए हुए थे, और वो एक नया प्लेटफॉर्म इस पे बनाया हुआ था उन्होंने। एंड दे वर ट्राइंग टू कन्विंस अस कि हम भी उसमें शामिल हो जाएं, बट देर वॉज अ लॉट ऑफ बज एट दैट टाइम, जिस वक्त ये डिस्कशन हो रही थी हॉल में कि वेदर इफ वी यूज इट, इज इट हलाल और हराम। तो वो क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे नहीं, हलाल और हराम को जो पर्सपेक्टिव लेके आते हैं लोग कि अब डिजिटल है, अगर एक वो बेसिकली कहते हैं कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही फिजिकली में? तो वो आप वो उसको कंसीडर कर देते हैं कि वो शायद हलाल नहीं, जबकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसी में आप अगर डिफरेंट जो उलमा है उनके फतवे देखें तो वो आपको क्या कहेंगे? बेसिकली ये चीज एग्जिस्ट कर रही है फिजिकली बैक एंड पे। अगर क्रिप्टो ही है, अगर क्रिप्टो के बैक एंड पे डॉलर प्लेस हुआ हुआ है, जिस तरह पेपर करेंसी है, पेपर करेंसी के बैक एंड पे गोल्ड प्लेस हुआ हुआ है, ये हलाल है। इसमें जो चीज जिसको थोड़ा सा कंफ्लिक्ट राइस देखा जाता है वो इसमें आ जाता है लिक्विड ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, जिसमें अकाउंट लिक्विफाइड हो सकता है। फ्यूचर ट्रेडिंग ये होता है कि जिस तरह से मतलब आपने एक चांस प्ले कर दिया। अब चांस पे ये होता है कि इधर आप सक्सेस भी जा सकते, एक रिस्क है, या तो हम बहुत आगे जा सकते हैं या हम बहुत डाउन आ सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव में कंसीडर किया जा सकता है। बाकी जो नॉर्मल पर्सपेक्टिव है उसमें ये बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल ये हलाल है। कोई उसमें ऐसा इशू नहीं है क्योंकि ये फ्यूचर आप। में ऐसा है कि आप प्ले जी करती जी। है। जी जी, बताइए। आप कैन यू कुछ, रिपीट योर क्वेश्चन? नहीं नहीं, आप कुछ कह रहे थे फ्यूचर के बारे में। अब मैं कहता फ्यूचर पर्सपेक्टिव में अब ये है ना कि अगर मैंने कह दिया कि $10 है और यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, हो सकता है कि विद इन आवर वो $100 $1000 भी हो जाए। और हो सकता है अगर उतने ना हुए तो मेरा अकाउंट भी बंद हो सकता है। ये एक चांस होता है और ये जो चांस है इसे समहाउ जो कहते हैं हलाल में। एक नॉर्मल ट्रेडिंग, आपने एक चीज बाय कर ली, इन केस अगर हम कार्स की एग्जांपल ले लें, फ्यूल के इंक्रीज होने से पहले जो कार्स की प्राइसेस थी वो लेस थी, अब इंक्रीज हो गई हैं। तो क्या इन कार्स को बाय करना हलाल है या हराम है? तो एग्जैक्टली इसी तरह वो एक आपके पास ट्रेडिंग है, और ट्रेडिंग जो है वो आपके पास हलाल है, तिजारत है, तिजारत में आपके पास पैसा है। और ये आपकी सारी ग्लोबल वर्ल्ड को एक जगह पे लेके आ रहा है, क्योंकि कंट्रोल खत्म हो जाएगा। बेसिक क्रिप्टो करेंसी ये है कि वर्ल्ड में जो आईएमएफ है, जो डिफरेंट बैंक हैं, सबका कंट्रोल खत्म हो गया है। हर पर्सन आपस में लिंक हो रहा है, हर बंदा आपस में ट्रेडिंग कर सकता है और हर बंदे के एक अपना अकाउंट है। तो इसी पर्सपेक्टिव में ये बताइए, इजंट इट अ बिग थ्रेट टू द फिजिकल बैंक्स दैट वी सी अराउंड अस? जैसे वर्ल्ड बैंक आप कह रहे हैं, या पाकिस्तान में भी और इंडिया में बड़े बड़े बैंक्स हैं, तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। व्हाई आर दे नॉट, द बैंक्स, व्हाई आर द बैंक्स नॉट शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस करेंसी? बेसिक रीजन ही है, बिल्कुल ये बैंक्स को थ्रेट है कि अगर हर पर्सन के पास अपना कंट्रोल आ जाएगा तो फिर उनके पास क्या एक्सेस रहेगा। और ये आ जाएगा इन फ्यूचर में, क्योंकि कब तक आप किसी चीज को रोक सकते हैं? इवन के नॉर्वे जो है, नॉर्वे ने बिटकॉइन को बिल्कुल लीगल कर दिया है और वो उसी में ट्रेडिंग कर रहा है। तो इससे पहले कि फुली कंट्रोल आ जाए, बैंक कुछ रूल्स बना के इसको अपने साथ ऑपरेट कर लें तो वो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज इन फ्यूचर लोगों ने इस पे जाना है, आपकी करेंसी ने उस पे जाना है, और जब करेंसी उस पे चली जाएगी तो डेफिनेटली जो है एक डिसेंट्रलाइज कंट्रोल आ जाएगा और बैंकों के पास अथॉरिटी बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। ये इन फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। पर इसके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हमने किस कॉइन की तरफ जाना है, ये बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। क्योंकि कोई भी कॉइन है, अब अगर तो हम किसी के इवन के भी जो लास्ट टाइम हुआ था लिंक के साथ, क्या हुआ था कि सारा की सारा लॉस हो गया, कितने बंदों ने सुसाइड कर ली थी। तो बैक एंड पे टीम कौन सी है?
बैक एंड पे इन्वेस्टर कौन से हैं। अगर अब मैं आपको कहूँ माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट करेंगे, टेस्ला में करेंगे, एप्पल में करेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल डेफिनेटली मैं इन्वेस्ट करता हूँ इनमें। तो यही जिन कॉइन्स के बैक एंड पे इनकी टीम्स बैठी हुई हैं, जैसे डॉज की बैक एंड पे टेस्ला है, उसने प्रमोट किया था। इसी तरह जो है एडपॉट पे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने प्रमोट किया हुआ है। तो उन पे तो इन्वेस्ट करेंगे तो ठीक है, रिलायबल है। जो रिलायबल नहीं है, इवन की जैसे अभी हम एक कॉइन बना के लॉन्च कर दें और कुछ टाइम बाद हम देखें नहीं हम स्टेबल नहीं है, हम उसे खत्म कर दें, तो वो लॉस पॉसिबल है। इस लिहाज से हमने टीम देखनी है बैक एंड पे कौन है, फिर उस टीम के अकॉर्डिंगली हमने उस स्टेबल कॉइन की तरफ जाना है। तो कॉइन्स आप कह रहे हैं कि हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। आई हैव माई सेल्फ सीन, क्योंकि थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड है, आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स मूविंग इनटू दिस फील्ड एंड ट्राइंग टू डू दिस एज अ स्टार्टअप, और इस पे वो काम कर रहे हैं। तो दे मस्ट बी फेसिंग सम चैलेंजेस। व्हाट डू यू रेकमेंड कि वो क्या करें, और वो क्या वो अपना कॉइन बनाएं या इसके ऊपर कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लें, कैसे लेकर चलें? मैं स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स की बात करूं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बिटकॉइन और इथेरियम के साथ लेके चलते हैं। अब बिटकॉइन आया था 2008 में, उसने क्या किया था, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे दिया था, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। 2013 में विटालिक ने ये चीज नोट कर ली थी। विटालिक ने देखा कि इसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर विटालिक बर्टन ने 2013 में जो है इथेरियम का एक प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस कर दिया था। इथेरियम बेसिकली कॉइन नहीं है, एक पूरा प्लेटफॉर्म है। कॉइन जो है उसका वो ईथर है। तो जब उसने ईथर को देखा तो तब उसने एक कोड जनरेट कर दिया कि अब क्या ERC20 का कोड है, कोई भी आए इस प्लेटफॉर्म को यूज करे और एक अपना टोकन बना ले। तो उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कोई भी टोकन बना सकता है, पर उसे फिर बैक एंड पे उसने ईथर्स रखने हैं। पर स्टूडेंट्स को अगर इस साइड पे मूव होना है तो पहले उन्हें बेसिक नॉलेज हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आते हुए वो अपना लॉस कर देंगे। इनिशियल तकरीबन 95% लोगों ने अपना जो है वो नुकसान कर दिया था। कोई भी कंपनी जब उसकी आउटबाउंडिंग ज्यादा हो इनकमिंग को फिर वो भी मैनेज कर लेगा। और जब भी अगर वो देखेगा कि चीजें कम सेल हो रही हैं और इनकमिंग जो है वो आ नहीं रही, चीजें ज्यादा जा रही हैं, तो वो क्या कहेगा नहीं बस ठीक है, इसको डिसमिस कर देते हैं। तो अब डिफरेंट हमारे पास एक्सचेंज है, बाइनेंस की एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसमें डेमो ट्रेडिंग है। डेमो ट्रेडिंग है इन केस आपने क्या किया, लर्निंग के लिए आपने पहले $10 की ट्रेडिंग, मतलब विदाउट इन्वेस्टमेंट, आपने सिर्फ डेमो लर्निंग के लिए की। तो आपको पता चल गया कि ठीक है, मैंने क्या किया, $100 $200 गेन कर लिए हैं, पर वो मिलेंगे नहीं, पर आपकी नॉलेज गेन होता जाएगा कि अगर मैं ये स्ट्रेटेजी, ये स्किल्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ठीक है मुझे इतने इतने अप्लाई हो सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स की जो पॉकेट मनी है वो उसको यूज कर सकते हैं। उसको यूज करते हुए पहले साल मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स डे ट्रेडिंग पे जाएं, क्योंकि डे ट्रेडिंग का ये बेनिफिट है कि उन्हें उसी दिन में अगर वो कुछ देर बैठते हैं और साथ देखते हैं, लर्निंग डेमो के बाद कर चुके हैं, तो वो $20 $30 $40 आराम से जो है वो एक दिन में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं पर डेमो ट्रेडिंग के बाद। सेकेंडली, हमारे जो IT के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है NFTs। हम्म। हम यूजली अपनी इमेजेस बनाते रहते हैं या कोई और स्केचिंग करते रहते हैं। तो ये स्केचिंग आपके सेल फोन में पड़ी है, आपके लैपटॉप में पड़ी है, व्हाई नॉट कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है हमारी, वो वाले राइट्स ले लें, हम इसे NFT के प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर दें। हमारे पास सोर्सी है, सीबॉर्न है, NFT आर्ट है, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे अपलोड कर दें। आपने सुना होगा स्टार्टिंग में जो एक कोरियन या चाइनीज एक स्टूडेंट बचा था 22 ईयर्स अराउंड, जी। उसने $3 में अपनी सेल्फीज अपलोड की थी और उसकी वो सेल्फी सेल हुई थी $1 मिलियन में। जी बिल्कुल। आप अभी भी इसे गूगल कर सकते हैं। जी। तो ये $1 मिलियन में सिर्फ उसकी सेल्फी सेल हुई थी, तो हम कोई नॉर्मल ऐसी क्रिएटिव इमेजेस अपलोड करेंगे तो क्या वो नहीं होंगी? एक चांस है, एक रिस्क है, जो आपके लैपटॉप में पड़ी है, जो आपके मोबाइल में पड़ी है, वाई नॉट कि हम उन्हें सी सोल या जो है किसी और प्लेटफॉर्म पे प्लेस कर दें जो NFT के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा वर्क के साथ साथ जब भी क्लिक हुआ तो उनकी चलेंगे। और इसकी मार्केटिंग के जो कुछ स्टंट्स हैं, क्योंकि हर चीज में कुछ गेम्स होती हैं, वो बेसिकली ये है इन केस अगर आप लास्ट डे आपने सुना होगा कि ठीक है राबी पीरजादा ने मरियम नवाज की पिक्चर बनाई, नहीं सेल हो रही थी, फिर सोशल मीडिया पे है, क्विकली सेल होगी। तो इसी तरह से अगर हमने कोई NFT बना दिया किसी का, तो ट्विटर पे उसे हमें हिट करना चाहिए, वो उसकी ऑटोमेटिकली मार्केटिंग, ऑटोमेटिकली प्रमोशंस कर देते हैं। और जब वो ऑटोमेटिकली प्रमोशन होगी तो जितने में आपने अगर $30 $40 $50 में लगाई है, उतने में तो डेफिनेटली वो जाएगी ही जाएगी। हम्म। पर इसके भी फिर दो मैकेनिज्म है। या तो फर्स्ट टाइम आप कंप्लीटली सेल कर देते हैं,
तो वो आपको $50 मिल गए, ठीक है। सेकंड ये है कि आप कुछ राइट्स रखते हैं, मैंने एक पर्सन को सेल की, उसने दूसरे को की, दूसरे ने तीसरे को की, तो हर टाइम आपका कोई ना कोई शेयर आता रहे, तो जब भी सेल होगी वो आपका कुछ ना कुछ शेयर आएगा। तो ये तो वो वेज हैं जिनके थ्रू स्टूडेंट इजीली रेवेन्यू से जो है वो कर सकते हैं। गेन कर सकते हैं। तो इसमें ये बताइए कि जो अभी हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं और उनमें जो एकेडमिक प्रोग्राम्स चल रहे हैं, व्हाट आर देयर इनिशिएटिव्स, वो इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को क्या बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, हैंड्स ऑन कोई लैब्स हो रही हैं, क्या वो कर रहे हैं इस सिलसिले में? बेसिकली जब मैं कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था, तो वहां पे तो प्रॉपरली ब्लॉकचेन का कोर्स पढ़ाया जा रहा था, और इवन के हम कॉइन बनाते थे और कॉइन को डिप्लॉय भी करवाते थे। हम्म। अब इथेरियम हमें जो है वो प्लेटफॉर्म देता है। एक तो अगर आप मेटामास्क जो वॉलेट है इथेरियम का, उसे जब आप नॉर्मली यूज करेंगे, तो एक तो मेन इथेरियम का ऊपर टाइटल आता है आपके पास, बाकी वो आपको टेस्ट के भी प्लेटफॉर्म दे रहा है कि डिप्लॉय कर दो इस पे टेस्टिंग के तौर पे, और कैसे चल रहा है ये कॉइन, ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, जिसमें को वन लिंकी पाए, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास उन टेस्ट नेट्स के, तो उन पे डिप्लॉय करते थे कॉइन, उनको चेक करते थे। इवन कि हमारा एक स्टूडेंट था कस्ट में, और उसकी एक एनएफटी 60 lakhs में सेल भी हुई थी। वो तो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इसी तरह से फिर हम अगर बात करें हमारे पास एयर यूनिवर्सिटी में, यहाँ तो बहुत हाईली अपॉर्चुनिटीज हैं इस चीज की, पर अभी आई थिंक ऐसा इंसेंटिव कोई इनिशिएटिव कोई नहीं लिया गया, क्योंकि हमारे पास गेमिंग का डिपार्टमेंट है, जी। और जैसे और इसको इजी लेके आते हैं। क्या अब हम अवतार बनाते हैं अपना, हम देखते होंगे एआई हमारी एक इमेज जनरेट करके दे देती है। अब ये क्या है, ये हमारा एक अवतार है। अवतार बेसिकली एक एनएफटी है। एनएफटी ने अब क्या करना है, कहीं ना कहीं यूज होना है। हम हम्म। आइधर उसे डीपी पे लगा दिया, या हमने उसे हम्म। क्या किया, किसी प्लेटफॉर्म में प्लेस कर दिया। यहां तक तो ये नफ है। असल इसका रोल क्या है, जिस तरह से हम अपना एक रूम डेकोरेट कर रहे हैं, आपने हम्म। एक सीनरी प्लेस की, आपने यहाँ पे कुछ और फर्नीचर प्लेस किया, मतलब आपने जिस तरह से एक एनवायरनमेंट सेट की, बेसिकली इन ये एनएफटीज वही चीजें हैं जो वर्चुअल वर्ल्ड में, आपकी मेटावर्स में ये यूज होनी है, ये वहां पे प्लेस होनी है। तो जो यूनिवर्सिटीज में गेमिंग का डिपार्टमेंट है, वो बेसिकली जो गेम्स बिल्ड कर रहे हैं, वो इसी एनएफटीज को यूज कर रहे हैं, इन्हीं ब्लॉकचेन्स को यूज कर रहे हैं, और इन्हीं सैंडबॉक्स जो है गेम है आपके पास। और सैंडबॉक्स क्या करती है, टोकन्स हैं, टोकन्स को जनरेट करके आप उस गेम में, इवन की जो प्ले कर रहे होते हैं उन्हें भी कुछ कॉइन्स मिल रहे होते हैं, और जो आगे परचेज कर रहे होते हैं वो भी कॉइन पे कर रहे होते हैं। तो ये वही गेम है, हम जब गेम प्ले कर रहे होते हैं, बेसिकली हम कॉइन्स की माइनिंग कर रहे होते हैं, और जब वो माइनिंग हो रही होती है तो डेफिनेटली उन्हें कोई ना कोई रिवॉर्ड जो है वो मिल रहा होता है। So, student, not only if the opportunities are not available in the universities, higher education system, for example, so they might tend to do this as a side hustle. वो अपना थोड़ा सा अपना अपने जहन के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से वो थोड़ा सा इस पे वो काम कर सकते हैं। तो जब वो करेंगे तो किन लोगों, किन मेंटोर्स, किन प्लेटफॉर्म्स, कहीं ना कहीं से तो सीखना है ना उन्होंने। सो व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, व्हाट आर द कोर्सेज अवेलेबल, जो वो खुद शाम को, रात को किसी वक्त बैठ के सर्च कर सकें और उस पर काम कर सकें? जो अभी तक हमारे पास बेस्ट पर्सन हैं, एक तो सर ज़िया, जिन्होंने इंसेंटिव इनिशिएटिव लिया था ब्लॉकचेन को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने का। अभी वो सेकंड, अभी तक वो उनके कोर्स आ रहे हैं, अब 36 के 37 बैच आ रहा है। वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हम्म। उनमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2000 या 3000 फीस लेते हैं, वो जस्ट ये कि आइदर आप सीरियस हैं या नहीं है। तो एक तो वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है PIAIC का, वहां पे रजिस्टर करना चाहिए। सेकंड आपके पास जो प्लेटफॉर्म है वो है जिशानुल हक उस्मानी, जो चक शदाद में जो है, जो यूएसए के जो है डिफरेंट वहां पे लेक्चर्स भी दे चुके हैं। उनकी डिफरेंट बुक्स पब्लिश हैं ब्लॉकचेन से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, उनको स्टडी किया जा सकता है। फिर थर्ड बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास, अगर ट्रेडिंग को देखना है, ट्रेडिंग व्यू, कॉइन मार्केट कैप, ये प्लेटफॉर्म्स हैं। इनको देख के तो इजीली कोई भी स्टूडेंट जो है वो इसकी तरफ स्टार्ट ले सकता है। और इससे रिलेटेड हेल्पिंग मटेरियल बहुत ज्यादा अवेलेबल है। हम्म। व्हाइट पेपर्स भी अवेलेबल हैं, इवन की येलो पेपर्स भी अवेलेबल हैं। हम्म। बेसिकली येलो पेपर माइनर टू माइनर डिटेल्स भी इंक्लूड होती है कि अगर कोई सिस्टम बिल्ड हुआ है तो वो कैसे बिल्ड हुआ है, अगर इवन कोई वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है तो वो भी उसमें बताया जाएगा कि वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किया गया। तो ये हमारे पास ये सारे अवेलेबल है। अगर कोई सिर्फ मूव ऑन करता है
तो इसके लिए मतलब एक गूगल सर्च पे ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। अच्छा, चौधरी अनवार साहब ये बताएं कि व्हाट इज विद ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ये करेंसीज इन्वॉल्विंग इन द फ्यूचर, क्या इनका लिंक है, क्या इनकी डिस्कशन है आपस में, कैसे ये मिल रहे हैं या कैसे इनकी राहें जुदा हैं आपस में? अब अगर तो हम देखें ट्रेडिशनल करेंसीज को, तो उनमें बैंक्स को देखें, तो बैंक्स क्या करेंगे, वो इसके इन्वॉल्वमेंट को थोड़ा सा वाइड करेंगे। पर यहीं पे आपको बैंक्स डिजिटल एप्स की फैसिलिटी देते हैं कि ये डिजिटल एप्लीकेशन है, क्या करें किधर भी पेमेंट कर दें। हम्म। वो तो नॉर्मल सिनेरियो में आ गया। अब अगर हम्म। कोविड-19 जैसे एक पेंडेमिक आया था, अब वहां पे आपको इवन के क्लासेस भी जैसे हुई थी ऑनलाइन मूव हो गई थी, तो उसको एक रियल इन्वायरमेंट का टच देना है। तो वही जो रियल इन्वायरमेंट का टच है वो बेसिकली वर्ल्ड टू जो है आपके पास मेटावर्स, इवन जहां हम अभी बैठे हैं वर्ल्ड टू में ये जगह भी सेल हो चुकी है और ये भी रेंट पे अवेलेबल है मेटावर्स में। तो हमें अगर वो जगह भी लेनी है तो हमें ये भी रेंट पे लेनी पड़ेगी। तो इसी तरह से अब वहां पे जो चीजें चल रही हैं वहां पे ही आपकी क्रिप्टो करेंसी चल रही है। तो फ्यूचर में ये चीजें डेफिनेटली सारी की सारी क्रिप्टो की तरफ मूव होनी ही होनी है, डिजिटल करेंसी की तरफ जानी है, और डिजिटल करेंसी में भी सिक्योर करेंसी की तरफ। इन केस हम बात करते हैं कि क्या बैंक की ये जो ऑनलाइन ऐप है ये डिजिटल नहीं है, समहाउ डिजिटल है, और उसका ऑनर कौन है, एक सेंट्रलाइज कंट्रोल। बैंक आपके अकाउंट को भी जीरो कर दे, आप क्या कर लेंगे? कोई पावर है, अथॉरिटी है आपके पास? कुछ भी नहीं है। आपके अकाउंट को अगर बैंक ने जीरो कर दिया तो वो जीरो हो गया। जबकि क्रिप्टो करेंसीज जो है उसको कोई एक सिंगल पर्सन की अथॉरिटी नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है। कोई एक बंदा कभी भी आपके अकाउंट को जीरो नहीं कर सकता। उसके लिए उसे एक मेजोरिटी की जरूरत है, और मेजोरिटी के अलावा उसको जितनी कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर्ड है वो कभी भी उतनी कंप्यूटेशनल पावर अकेला एक्सेस ही नहीं कर सकता कि वो आपके अकाउंट को एक्सेस करके उतना हैश जनरेट करे और उसको जीरो कर सके। इसी वजह से डेफिनेटली फ्यूचर में आपकी ये क्रिप्टो जो है वो प्रमोट होगी होगी आगे जाएगी। नहीं, मुझे वापस कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपने अपने आंसर में ना बड़ी एक मजे की बात की है। एंड दिस इज हम्म, टोटली एन इनफॉर्मल शो, इसका नाम ही नॉट सो फॉर्मल शो है। मुझे ये बताएं, हम्म, जहां हम बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी हॉस्पिटल है, हम्म। वो जगह आप कह रहे हैं ऑलरेडी हमारे हाथ से निकल चुकी है और हमने दोबारा उसे रेंट पे लेना है, ये क्या सीन है? बेसिकली जो हमारी वर्ल्ड है ना, एग्जैक्टली इसी की मेटावर्स जनरेट हो चुका है, क्रिएट किया जा चुका है। आप अगर गूगल करें अर्थ टू के नाम से या मेटावर्स के नाम से, ये दोनों अवेलेबल होंगे आपके पास वहां पे। अब मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स बन जाते हैं, ये दो अभी तक रिलायबल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे लोग ये परचेज कर रहे हैं। तो इसी तरह से अब अगर हम एयर यूनिवर्सिटी की बात करें, उसकी प्लेस जो है मेटावर्स पे वो किसी ने बाय कर ली है। अब हम उसे लेंगे तो हमें उसे और अमाउंट देके परचेज करनी पड़ेगी। एक ये ऑप्शन है कि हमने वहां पे यूनिवर्सिटी क्रिएट करनी है, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, जो हम उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो वो इन्वायरमेंट है जो वर्चुअल इन्वायरमेंट, जहां पे हम ऑकलस वेयर करके उसमें इंटर होके बिल्कुल रियल इन्वायरमेंट वाला टच दे सकते हैं। तो वो इस तरह से जिसने क्रिएट की उसने आगे सेल की, लोगों ने बाय की। जिस तरह हमारी यहाँ पे आम नॉर्मल जो एक्चुअल वर्ल्ड है, यहाँ पे लैंड से लैंड परचेस हो रही है, एग्जैक्टली इसी तरह से सिनेरियो आपकी मेटावर्स में चल रहा है। दैट इज वेरी अमेजिंग एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब है हम तो काफी आगे पहुंच चुके हैं, दुनिया प्रोग्रेस कर चुकी है, बट विद इन आवर रीजन हम शायद थोड़े से पीछे रह रहे हैं। और आपने जैसे बताया कि देर आर लिमिटेशंस, और गवर्नमेंट भी मेरा ख्याल है इतने इनिशिएटिव्स नहीं ले रही है जितने लेने चाहिए, जैसे आप बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसे देखें ना, अभी तक तो इवन कि हम पेपॉल को नहीं लेके आ सके। तो अब वो एक मेथड है उसके थ्रू, तो फिर अगर वो इतने अरसे में नहीं आ सका तो इसको लाने तक भी ये बहुत आगे निकल जाएगा और फिर जीरो से एफर्ट करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हाँ इसमें नहीं है, इसमें पाकिस्तानियों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। उसका मेजर रीजन ये है कि आपकी क्रिप्टो जो है वो बेशक इलीगल है, पर पाकिस्तान में जब तक ये इलीगल हुई थी लोग इसको ऑपरेट कर रहे थे, हम्म। और डिफरेंट एप्लीकेशंस को आप स्टिल ऑपरेट कर रहे हैं लोग। तो वो इसमें किसी हद तक इन्वॉल्व हैं। और पाकिस्तान की एक अच्छी मेजर कम्युनिटी जो है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ कम्युनिटी जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान, और उसके बाद ये तुर्की वगैरह, तो ये एक अच्छा रेवेन्यू उन्हें जनरेट करके दे रहे हैं। आपकी मतलब एक मेजर अमाउंट जो है, एक ह्यूज अमाउंट इसमें ट्रेडिंग के लिए ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है। और उसके बाद इसी को यूज करते हुए, इन्हीं एक्सचेंज को यूज करते हुए, इन्हीं वॉलेट्स को यूज करते हुए आप क्या करते हैं, लैंड परचेज करते हैं मेटावर्स पे, उन्हें पेमेंट करते हैं, और वो उसके बाद आगे उसे फर्दर
डॉलर या शिफ्ट हो रहे होते हैं, वो आपकी करेंसी इसी तरह से मूव ऑन हो रही है। अगर हम इसे लीगल कर दें, रेगुलाइज कर दें, तो हम उनसे पेमेंट भी ले सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, completely agreeing to the idea. I have also seen, rather everyone has seen the name of Facebook change to Meta. ये इसके पीछे क्या लॉजिक है? बेसिक ये वही मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है। मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड। अब इवन आपने देखा होगा कि शुरू में फेसबुक ने आपको ऑप्शन दिए होंगे अवतार के। वो क्या है कि आपका एक छोटा सा जो है वो स्केच सा बना देते हैं, एक आपकी इमेज सी बना देते हैं। तो अवतार के वो बेसिकली वो आपको मेटावर्स उस दुनिया की तरफ लेके जा रहे हैं। फेसबुक ने क्या किया, आपके व्हाट्सएप को भी एक्वायर कर लिया, आपके इंस्टाग्राम को भी एक्वायर कर लिया। अब ये मार्क जुकरबर्ग के ही कंट्रोल में जीते। तो इसी को देखते हुए फेसबुक अपना नाम फ्यूचर में मेटावर्स इसी वजह से रखा है कि वो सारी वर्चुअल वर्ल्ड में चीजों को ऑपरेट करेगा। आपने क्या करना है, आपने ऑकुलस वेयर करना है और आपने ये देखना है कि जैसे आप उसी इन्वायरमेंट में थे। इवन आप घर बैठ के, क्योंकि आप देखिए लाइफ जो है वो बहुत शॉर्ट हो रही है। आप पहले देखिए, अगर हम पीछे जाते जाए तो अगर हजरत सलमान फारसी की लाइफ देखें तो वो कितने 100 साल थी। तो अगर हम अब अपनों पे आए तो अच्छा 50 साल 60 साल। तो इसको और शॉर्ट टाइम को यूज करने के लिए अब आप एक ही जगह पे बैठ के मल्टीपल एक्टिविटीज कर सकें। यहीं पे बैठ के आप रियल एनवायरनमेंट में जाके मीटिंग कर रहे होंगे, आप यहीं पे बैठ के रियल एनवायरनमेंट में बाकी टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। और बिल्कुल ही ऐसे जिसने वर्चुअल एनवायरनमेंट या ऑकुलस यूज किया वो तो बिल्कुल इसको फील कर चुका होगा कि डिफरेंस नहीं फील होता कि आप किस एनवायरनमेंट में बैठे हैं। इवन आपके जो डॉक्टर्स हैं, कोविड में ये बहुत ज्यादा इन रहा है। आपके डॉक्टर्स जो है वो इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके पेशेंट्स को चेक कर लेते हैं। तो ये डॉक्टर्स? एक इस लिहाज से है कि अब मेडिकल बेसिक ये है कि उस तरफ लेके चला गया चीजों को सारा। नहीं, ये मुझे थोड़ा सा बताएं ना, ये मेडिकल में कैसे यूज हो सकता है? डॉक्टर्स जो है वो हाउ कैन ही चेक अ पेशेंट, वो कैसे वाइटल्स उसके ले सकता है इन द मैटर? बेसिकली मेडिकल की कुछ एप्लीकेशंस भी बिल्ड हो चुकी हैं और ऑनलाइन मीटिंग की भी, जैसे कोसे एक एप्लीकेशन है KOSY। अब उसमें क्या है, एक सारी डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगी है। आप जाते हैं, डिफरेंट रूम्स बने हुए हैं ऑनलाइन में। आप एक रूम पे क्लिक करते हैं, ठीक है, वहां पे ये पर्सन है, ये बैठा है, ये काम कर रहा है, इनकेस यहाँ पे ये वाला डॉक्टर है कि यहाँ पे ड्यूटी दे रहा है, इसके साथ साथ ये एक्सेस है। वो क्लिक करते हैं और दूसरी तरफ से आपने वेयर किया होता है। तो वो जब वेयर कर लेते हैं ऑकुलस, तो वो ये एनवायरनमेंट आ जाती है कि जैसे पेशेंट आपके बिल्कुल सामने बैठा है और आप उससे ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं जैसे बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन से डिस्कशन कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल की इन्वायरमेंट। और इर्द गिर्द हॉस्पिटल की इन्वायरमेंट हो जाती है। अब डॉक्टर जो है यूजली पेशेंट से पूछता है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो वो सारी चीजें उनके थ्रू से पूछ लेगा। और फिर क्योंकि टेक्नोलॉजी है, तो अब आप देखेंगे आपकी जो स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच से आपको आपका बीपी पता चल रहा होता है, आपको ब्लड प्रेशर पता चल रहा होता है, आपको हार्ट बीट पता चल रही होती है। तो यही चीजें जो है उसमें इंटीग्रेटेड है। अब ये चीजें इंटीग्रेटेड है तो डॉक्टर्स के पास उसकी सारी पल्स का रेट क्या चल रहा है, उसके पास उसकी हार्ट बीट क्या चल रही है, शुगर्स क्या है या नहीं, ये बीपी कितना है, वो सारा रिकॉर्ड आ रहा होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसके सेफ्टी मेजर्स जो है वो ले सकता है। तो इस तरह से मेडिकल में काफी हद तक इंटीग्रेट हो चुका है। लैंड में जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी इसमें आ रही है NFTs में, जिस पे काम हो रहा है। वो ये हो रहा है कि एक NFT एक पर्सन को शिफ्ट की जा सकती है, मल्टीपल को नहीं की जा सकती। तो लैंड तो इनहेरिटेंस में जाती है। तो उस NFT को, उस लैंड को आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो कि आगे अब सब में शिफ्ट हो सके, इस पे स्टिल काम हो रहा है। और अभी तक इसमें गैप्स हैं कि मतलब इसको कैसे शिफ्ट करें। ठीक। तो लेट्स कम टू द क्लोजिंग ऑफ द शो, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो कि क्या आपके पास पर्सनली या आपकी टीम के पास आर देयर एनी ओपनिंग्स कि अगर स्टूडेंट आपके साथ जुड़ें, क्योंकि हमारा जो शो है हम इसे प्रमोट करेंगे ऑल ओवर पाकिस्तान, तो आपके लिंक्स भी इंशाल्लाह हम देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो आर देयर एनी ओपनिंग स्टूडेंट आपसे कनेक्ट करें तो हाउ कैन दे बेनिफिट फ्रॉम योर टीम? डेफिनेटली मोस्ट वेलकम टू एवरी स्टूडेंट, जो भी है स्टूडेंट हो, जो भी इस लर्निंग करना चाहे, मोस्ट वेलकम। हम आप हमें मिले, हम आपको बिल्कुल स्टार्ट से लेके पहले चलेंगे। पहले तो ये कि आपको खुद डेमो ट्रेडिंग कराएंगे कि ट्रेडिंग होता क्या है वो आपको पता चले। फिर NFTs क्या होते हैं वो आपको पता चले। मतलब जब एक स्टार्ट, एक पुश अप बेसिक्स आपको दे देंगे, फिर उसके बाद आप आगे खुद डिसाइड करेंगे आइदर आपने हमारे साथ काम करना है, आइदर आपने खुद काम करना है, हमारी टीम का पार्ट बनना है। वो आगे इट्स ऑल अप टू देम। ग्रेटफुल। एनी और एनी बेनिफिशियल, जी जी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। बेनिफिशियल इस लिहाज से उनके लिए होगा क्योंकि ये आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं।
अदर देन आप इसको एज एक्टिविटी हो जाती है। जब आप देखेंगे कोई भी चीज जो है ना आपको रेवेन्यू दे रही होगी, आपको मोटिवेट कर रही होगी, तो आप उसकी तरफ ज्यादा जाएंगे, तेजी से जाएंगे। एक पर्सन है, अगर वो 1 घंटा स्पेंड कर देता है ऑनलाइन, 1 घंटा स्पेंड करने के बाद उसे रेवेन्यू मिल रहा है, तो डेफिनेटली कहेगा ठीक है, मैं दिन में 2-3 घंटे इधर स्पेंड कर देता हूँ, बाकी टाइम अपना एंजॉय कर लेता हूँ या बाकी एक्टिविटीज डेली लाइफ की कर लेता हूँ। तो इस लिहाज से आपके पास ये प्लेटफॉर्म आ जाएगा। और हर चीज में, इवन क्या इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी यूज आ रहा है इसका, सप्लाई चेन में आ रहा है। हम्म। बेसिकली सप्लाई चेन में क्या प्रॉब्लम आ जाती थी, ये चीज किसने भेजी है, ये प्रोडक्ट फॉल्टी तो नहीं है, ये प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं। तो जहां से स्टार्ट हुई वहां से एंड तक कंप्लीटली पूरी की पूरी चेन, और कोई बंदा भी उसे चेंज नहीं कर सकता। कहाँ पे स्टक है वो सब कुछ पता चल जाएगा। तो इस वजह से स्टार्टली जो स्ट्रांगली ये भी इंटीग्रेट हो रहा है, ये सप्लाई चेन में हो रहा है। तो वहां पे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि वो ई कॉमर्स की साइड पे जा सकते हैं। वो अपनी कोई भी प्रोडक्ट सेल करेंगे, सेंड करेंगे, तो उसे किसी जगह पे थेफ्ट नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। अच्छा, ये आपने बड़ा जबरदस्त इसका जो है एक पहलू बताया है, क्योंकि मैंने खुद अपनी टीम के साथ एक प्रोजेक्ट किया था एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहाँ पे वो लोग कुछ अपने इक्विपमेंट मंगा रहे थे, बाहर ममालिक से मंगा रहे थे। हम्म, और उस एक इक्विपमेंट, यानी कि ठीक है। अभी मैं उसका नाम नहीं ले सकता हूँ शो पे, काफी वो सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो जो चीज मंगा रहे थे उसके तकरीबन 150-200 छोटे बड़े पार्ट्स थे, और वो उन्होंने अगले 3 साल में प्रोक्योर करते रहने थे। इतना उसका यूनिट्स इतने ज्यादा थे। ठीक है। तो उन्होंने उसके लिए पूरा एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराया हमसे, कि जिसमें उन्होंने देखा कि कौन सी चीज आ गई है, उसका क्या स्टेटस है, कितनी वो डेवलप हो गई है। इट वाज अ वेरी हेक्टिक प्रोजेक्ट, और हमें उसमें 6-7 महीने लगे करने में, ऑल्दो वी डिड दैट। लेकिन अगर हम इस साइड पे ले जाएं जैसे आप बता रहे हैं, तो दैट कुड बी अ वेरी इजी पार्ट अगर ये डेवलप हो गया है इस साइड पे, मेटा में। ये बिल्कुल डेवलप है भी, काफी प्रोजेक्ट्स इसमें चल भी रहे हैं। इवन अगर आप जाए ना कनाडा में, कनाडा में एक कॉफी बीन है, कॉफी शॉप, उसमें ना एक बार कोड है। हम जस्ट उसको स्कैन करें ना मोबाइल पे, तो आपको ये भी बता देगा कि ये जो सीड है, ये किस जो फील्ड थी वहां से निकला था, और वहां से लेके कैसे ट्रेवल होके यहाँ तक पहुंचा है। तो पूरी सिर्फ उस कॉफी को जो आप पीने लगे होंगे उससे पहले सारी की सारी उसकी डिटेल आपको बता देगा, क्या इधर वो हाइजेनिक है अनहाइजेनिक है। तो सारी उसकी सप्लाई चेन वहां पे उसकी मेंशन होती है। तो इसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट है, कहीं से भी आ रही है, कैसे भी आ रही है, कंप्लीटली सिक्योर जो है वो आ सकती है। और इसमें बाउंड्रीज नहीं है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है। कोई कंट्री की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कंट्री की बाउंड्रीज नहीं है। ये ग्लोबली आप सारे के सारे आपस में कनेक्ट हैं। तो ये नहीं है कि इससे परमिशन लेके उस कंट्री में जाना पड़ेगा या इस चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा। ग्लोबली कॉन्टेक्ट है सारे। आपने क्या किया, किसी भी मुल्क में किसी भी जगह किसी को भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वो उसका पार्ट बन सकता है और वो वहां से सेंड कर सकता है। बाकी जो लीगल प्रोसीजर थे यूनिवर्सिटी में, इन वो सॉरी कंट्री में एंटर होने के, वो बस फॉलो करने होंगे। बाकी ऑर्डर्स के लिए जो है वो रिलायबिलिटी इंहांस हो जाती है इसमें। थैंक यू वेरी मच सर चौधरी हसान। और लेकिन ये सारी तो बातें हो गई रिसर्च के हवाले से और एकेडमिक्स के हवाले से, एंड योर पैशन फॉर द करेंसीज और बिटकॉइंस। इसके अलावा मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ रिलैक्स्ड? आपका अपना सर्कल क्या है? आप दोस्तों में चिल करते हैं या नहीं करते? क्योंकि जो यूथ है, जो स्टूडेंट पार्टी है, उसका पार्टीज की तरफ, घूमने फिरने की तरफ, और वो उनका बहुत ज्यादा होता है, ट्रैवलिंग की तरफ बहुत ज्यादा रुझान होता है। आप कैसे खुद को रिलैक्स्ड रखते हैं, मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? और इसके साथ साथ आप अब, क्योंकि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा, खुद को रिलैक्स नहीं रखूंगा, तो मैं अपनी पढ़ाई की तरफ या रिसर्च की तरफ भी फोकस इतना नहीं कर सकता। आप इसे कैसे मेंटेन अपना रखते हैं? बड़ा सिंपल सा रूल है लाइफ का एक, कि कभी स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी चीज का। जो होना है वो होना है, जो नहीं होना वो नहीं होगा। ये तो बहुत सिंपल रूल है। तो हम अगर कोई स्ट्रेस ले लेंगे तो उससे वो काम डिले हो सकता है, जल्दी नहीं हो सकता। हम्म। बाकी अब हम ज्यादातर मूव हो गए हैं ऑनलाइन की तरफ, गेमिंग की तरफ। हमें फिजिकल कोई ना कोई एक्टिविटी मस्ट रखनी है। हम्म। तो बेसिक जो मेरी गेम है वो मैं फुटबॉल खेलता हूँ। फुटबॉल मेरा पैशन है। मतलब इवन कि मैं कहीं भी हूँ, किसी भी जगह पे हूँ, फुटबॉल के टाइम पे मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे। सही। जैसा भी काम हो कोशिश करता हूँ कि उसको किसी तरह से डिले कर दूं। फिर ट्रैवलिंग के लिए तो मस्ट होता है कि हर 6 मंथ बाद की, अभी जैसे लास्ट टाइम मैं नॉर्दर्न एरियाज गया हुआ था सारे, तो वहाँ 15 to 20 डेज स्पेंड करके आया। तो ये है कि ट्रैवलिंग आपने करनी है, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें। रेवेन्यू रेवेन्यू ये तो आएगा।
पर एक एज तक 50-60 ईयर्स के बाद आप क्या करेंगे इस रेवेन्यू का? कुछ भी नहीं, ये यूजलेस हो जाएगा। तो ये जो एज है, ये जो टाइम है, इसमें अपने आप को एंजॉय करें, अपने मतलब देखें, दुनिया देखें, बाकी घूमे फिरें, और फिजिकल एक्टिविटी को कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि उससे ये है कि आपकी फिजिक भी प्रॉपर जो है वो मेंटेन नहीं रहती, और ओवरऑल भी जो है आपके कम्युनिटी, एक सर्कल, एक पीआर जो है वो नहीं रहता। और जब पीआर नहीं होगा तो डेफिनेटली आप खुद को बहुत अलोन समझेंगे। हम्म। तो आप यू आर अ फैमिली मैन, यू ट्रैवल विद द फैमिली और यू ट्रैवल विद योर फ्रेंड्स, किस में आप ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं? मोस्टली जो है मैं फ्रेंड्स के साथ ही ज्यादा ट्रैवल कर रहा होता हूँ, क्योंकि कोई भी जगह जब खुद एक्सप्लोर ना की हो तो वहां पे पहले फैमिली को नहीं लेके जाना। तो पहले यूजली फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि फ्रेंड के सर्कल में, फ्रेंड के जोन में जो है आप इजीली चीजों को एक्सप्लोर कर लेते हैं। फिर आप देखते हैं कौन सी ठीक है, सिक्योर प्लेसेस हैं, कौन सी नहीं है, तो वहां फिर आगे फैमिली के साथ आपने टूर्स कर दिए, मतलब डिफरेंट इवेंट्स पे। वन मोर क्वेश्चन, ये बताएं व्हेन आर यू प्लानिंग टू लीव पाकिस्तान, क्योंकि तकरीबन सारा पाकिस्तान ही छोड़ने के मूड में है, लाखों पाकिस्तानी छोड़ गए हैं, आपके क्या प्लान्स? नहीं, पाकिस्तान अगर छोड़ना होता तो वो तो बहुत पहले छोड़ देते, क्योंकि कई अपॉर्चुनिटीज आई हैं, इवन के लास्ट टाइम ब्रुनाई की भी आई थी। तो अगर गए भी तो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, विजिट के लिए जाएंगे, ट्रैवल के लिए जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी, इवन कि अगर हम देखें, अब बिल्कुल आपकी बात सही है कि लास्ट 7 मंथ्स में जो है अराउंड 4 मिलियन पीपल्स जो है वो बाहर जी गए, बल्कि फोर बिल्कुल। सॉरी 4 मिलियन, 4 लाख पीपल, जी 4 लाख जी पीपल्स जो है वो बाहर गए थे। जी, सिक्स पॉइंट तो फाइव इसी लाख लिहाज से जो है 6.5 लाख हो गया अभी ये फिगर। 6.5 लाख देखें, तो वो इन्फ्लेशन ये जो हाई हो रही है, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर उसके साथ साथ अगर आप थोड़े स्टेबल हो तो फिर आप कहते हैं ठीक है कि रेवेन्यू चल रहा है, प्रोसीजर चल रहा है, तो इसको चलाते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर हम खुद सर्व नहीं करेंगे तो फिर कौन सर्व करेगा हमारी कंट्री को? हम्म, तो हमें खुद को स्टेबल तो करना ही करना है, तो इस लिहाज से मुल्क को टाइम तो देना होगा हमें। बिल्कुल देना होगा सर। एनी लास्ट मैसेज फॉर द यूथ, फॉर द स्टूडेंट्स, पर्सनली आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिक तो मैं ये यूथ को कहना चाहूंगा कि ब्लाइंडली किसी चीज पे नहीं चल पड़ना। उसने कुछ कहा ठीक है, उस तरफ डायरेक्शन में चल के, इस बंदे ने कुछ कहा इस डायरेक्शन में चल पड़े, नहीं। हमेशा प्लान आपने खुद करना है, आपने अपनी लाइफ को प्लान करना है। गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो टेम्परेरी गलत सही होता है, कुछ टाइम बाद वो चीजें डायरेक्शन पे आ जाती हैं। पर किसी के डिसीजन के बाद आप रैंडमली अगेन एंड अगेन जब अपने पास चेंज करते हैं तो आप सक्सेस से बाद बहुत दूर होना शुरू हो जाते हैं। खुद से डिसाइड करते जाएं, खुद से डिसीजन लेते जाएं, क्योंकि अपने बारे में सिर्फ आप ही सबसे बेहतर जानते हैं, और कोई बंदा भी आपके बारे में आपसे बेहतर नहीं जानता। एब्सोल्युटली, बहुत खूबसूरत बात। थैंक यू वेरी मच चौधरी अनवार, हमारे शो पे आने के लिए। और ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स ने, यूथ ने, लिसनर्स ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपके जो तमाम डिस्क्रिप्शन है, आपके जो लिंक्स हैं, इंशाल्लाह हम इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लगाएंगे ताकि लोग आपसे कनेक्ट कर सकें। हमारे साथ भी जो कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे। सो लिसनर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ठीक बीइंग है। विद अस, और मिलते हैं नेक्स्ट शो में। अंटिल नेक्स्ट वीक, थैंक यू वेरी मच।